So let's continue with the Mendeleev's periodic table, and today we are going to learn about the achievement and limitations of his table. Till today we have learned about that he has arranged 63 elements which were known at that time in his table, and according to Mendeleev, this line is very important. The principle of Mendeleev's periodic table: the properties of elements are a periodic function of their atomic masses. This line is very important, and this line means कि when the elements are arranged in the increasing order of their atomic mass, their properties, their physical and chemical properties repeat after a fixed interval. And his table consists of vertical columns called groups and horizontal rows called periods. I want to show you again the large picture of Mendeleev's periodic table, which I have also shown in my last video. Just have a look. Here on the screen you can see it was Mendeleev's periodic table. In the last video I also discussed that these vertical columns are called groups. It has been written here, and there were 8 groups in the Mendeleev's periodic table, and in the modern periodic table also there are 8 groups. And the about periods, these are the horizontal lines, and there were 6 periods in the Mendeleev's periodic table. These are the general formula of oxides and hydrides of elements, because he considered them as one of the important criteria for classification. But he arranged all the elements in the increasing order of their atomic mass. बेसिकली यही एक प्रॉब्लम रह गई थी. अदरवाइज यहाँ जो इन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड को बेस माना, इट वाज concerned with chemical properties, which was more appropriate. But later on it was found that chemical properties are more related to atomic number, not atomic mass. Only this was the mistake, but still it was a successful attempt at that time. So that's where the credit goes to Mendeleev for classifying the element. Now let's come back to our worksheet. Let's discuss the achievements of Mendeleev periodic table. एक्चुअली सबसे बड़ी अचीवमेंट इनकी रहेगी ही लेफ्ट द ब्लैंक स्पेसेस फॉर द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड. अभी वो उस समय पे उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया कि कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे और उनकी ये प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, लाइक बोरॉन से सिमिलर होंगी, तो उन्होंने नेम दे दिया एक्का बोरॉन, then Eka aluminium, and then Eka silicon. Later on these elements were discovered and they were found to be having the same properties as Mendeleev predicted. Scandium was the real name, which was similar in properties to boron. Gallium was similar to aluminium and germanium was similar to silicon. सो ही प्रिडिक्टेड, मतलब कितनी अच्छी एक ऐसी देखिए रिमार्केबल चीज़ है कि किसी ने प्रिडिक्ट कर लिया और वो प्रिडिक्शन ट्रू भी हुआ. सेकेंड उनकी प्रॉपर्टी, सेकेंड अचीवमेंट रही उनकी कि जो प्रॉपर्टीज उन्होंने उन एलिमेंट्स की जो येट टू बी डिस्कवर्ड थे, जो प्रॉपर्टीज उन्होंने बोला कि हाँ हो ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी, वो देवर फाउंड टू बी करेक्ट. सो हेयर द की लाइन इज प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज वर लेटर फाउंड टू बी करेक्ट. एंड हेयर इज एग्जांपल गिवन. एक्का एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास प्रेडिक्ट किया 68 यूनिट्स, एंड व्हेन गैलियम वाज डिस्कवर्ड इट्स एटॉमिक मास वाज फाउंड टू बी 68.7, almost similar to aluminium. Formula of oxide E2O3. E is the general name for that particular element which Mendeleev predicted, and the formula of gallium with oxygen is Ga2O3. Now formula of its chloride is ECl3, and the formula of gallium with chlorine is GaCl3. मतलब these properties were found to be absolutely correct. So it was also one of the remarkable achievement of Mendeleev. And the third achievement is noble gases which were later on discovered, they could be accommodated in the periodic table without disturbing the existing. जो भी arrangement था उसे कहीं disturb नहीं करना पड़ा. In periodic table noble gases were accommodated without disturbing the existing elements arrangement. And because why these achievements he was able to secure, because he took the formula of oxides and hydrides as the basis for classification of element. And oxides and hydride, they come under the category of chemical properties. और प्रॉब्लम सिर्फ ये रही कि उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक मास को रिलेट करने की कोशिश की, जो रिलेशन ही गलत है. केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिसाइडेड बाय एटॉमिक नंबर, बट इसके बारे में काफ़ी लेट पता चला. एट दैट टाइम ही वॉज able to achieve these achievements, he was able to secure these achievement because chemical properties को कहीं ना कहीं उन्होंने बेसिस बनाया था. अब ये जो गलती हुई कि उन्होंने एटॉमिक मास से इसका रिलेशन किया, एटॉमिक नंबर से नहीं किया, तो वो जो लिमिटेशंस हैं उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं. एंड इन द एग्जाम आपका एक क्वेश्चन भी है वर्कशीट में कि अचीवमेंट्स क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं.
तो 1 2 3 करके आप 3 लाइंस दे देंगे, दैट वुड बी सफिशिएंट टू गेट फुल मार्क्स। यहाँ पर लिमिटेशन में क्या है कि आप जो की लाइन है, दिस इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ, या couldn't assign a correct position of hydrogen in the table. अब हाइड्रोजन को वो क्यों नहीं दे पाए? As today we know that hydrogen has the atomic number 1. ये तो आज आया है एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट, मीन्स काफी लेटर ऑन आया है। के शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है। नाउ दिस 1 इलेक्ट्रॉन इट कैन लूज ऑल्सो लाइक एल्कली मेटल्स, सोडियम इज एन एल्कली मेटल, एंड इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन लाइक हेलोजन एलिमेंट्स लाइक क्लोरीन। अब अगर हम यहाँ देखें कि एल्कली मेटल्स क्लोरीन के साथ फॉर्मूला बनाता है NaCl, सपोज हम सोडियम का एग्जांपल ले रहे हैं, सो कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद क्लोरीन इज ऑल्सो HCl, दोनों का फॉर्मूला सेम है। नाउ विद ऑक्सीजन इज Na2O एंड हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ H2O, विद सल्फर इट इज Na2S एंड हाइड्रोजन इज H2S, मीन्स सेम केमिकल फॉर्मूला है इनके। तो केमिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन किनसे मैच करता है? एल्कली मेटल से। ऑन दी अदर हैंड जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है या शेयरिंग करता है लाइक क्लोरीन, क्लोरीन भी जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और Cl2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। हाइड्रोजन ऑल्सो शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ईच अदर एंड दे फॉर्म H2 मॉलिक्यूल लाइक क्लोरीन, सो हेयर इट मैचेस विद क्लोरीन। नाउ मैंडलीव गॉट कंफ्यूज्ड कि कहाँ है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, किसकी इसकी प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच कर रही हैं, एल्कली मेटल्स के साथ या हेलोजेंस के साथ। तो ही वाज नॉट एबल टू गिव इट अ करेक्ट पोजीशन। एंड द अदर limitation was with isotopes. Isotopes जो हैं they were given different positions because isotopes क्या होते हैं जिनका atomic number same but atomic mass different होता है। अब इन्होंने उनको different position दी, but केमिकल प्रॉपर्टीज वहां मैच नहीं हो रही थी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज किससे डिसाइड होती हैं? एटॉमिक नंबर से। अब केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे आइसोटोप्स की, तो वो सिमिलर आ रही थी, लेकिन इन्हें किस ऑर्डर में अरेंज करना था? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ ये फिर कंफ्यूज हो गए कि आइसोटोप्स को प्रॉपर असाइनमेंट नहीं दे पाए, उनकी पोजीशन असाइन नहीं कर पाए। एंड समवेयर एटॉमिक मास रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं हो रहा था। दिस इज द की लाइन विच यू हैव टू राइट इन एग्जाम, कि एटॉमिक मासेस डोंट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर। समवेयर जो लेस एटॉमिक मास वाला एलिमेंट था वो लेटर ऑन रखा गया, बाद में रखा गया लेटर इन द पीरियोडिक टेबल, और जो ज्यादा वाला था उसको इन्होंने पहले रख दिया, उसकी पोजीशन अर्ली कर दी कहीं। सो ये भी मिसमैच रहा। Fine, now we can discuss the questions very easily. Who is known as the father of periodic table? Mendeleev. Important property which he used to classify the elements, the formulae of oxides and hydrides of the element, ये एक basic property ली, because ये chemical property का कहीं ना कहीं consideration आ गया, that's why he got more successful. He left some blank spaces in the periodic table and name those elements and what were the names given to them. तो here is the table, यहाँ पे इनके जो मेंडलीफ ने नेम दिए हैं और जो बाद में उनके रियल नेम्स थे, दे ऑल आर गिवन। और ये एग्जाम्पल तो नहीं, बट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम पूछी जाती है। एंड द अदर लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपकी अचीवमेंट्स हैं एंड देन लिमिटेशंस हैं, विच यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ, विच यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ, यस, इन्हें आपने की लाइंस के फॉर्म में लिखना है कि ब्लैंक स्पेसेस आ गए। पहली बात तो ये ब्लैंक स्पेसेस, आप यहाँ पे जो की लाइन लिखेंगे एग्जाम में कि ही लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेसेस फॉर द एलिमेंट्स येट टू बी डिस्कवर्ड, और एक ये टेबल दे देंगे साथ में। उसके बाद ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा अचीवमेंट का। देन आपका सेकंड पॉइंट रहेगा कि प्रॉपर्टीज जो थी, हाँ यस, द प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज वर फाउंड टू बी करेक्ट, ये सेकंड प्रॉपर्टी बिल्कुल सेकंड लाइन हो जाएगी। एंड द थर्ड इज noble gases could be accommodated without disturbing the existing. So these 3 lines you have to write only for getting 1.5 mark, because 3 achievements और इनके साथ जो ये 3 limitations पूछी जाती हैं, again it carries 1.5 mark, half mark for each limitation. यहाँ आप लिखेंगे कि he couldn't assign a correct position of hydrogen, this is first. अब क्यों है, अगर रीजन नहीं पूछा है तो you need not to explain. And second is isotopes were given different positions, ये second हो गया। And the third would be atomic masses didn't increase in a regular manner, so it was the third limitation. I hope अब मेंडलीव का टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि उनकी अचीवमेंट्स क्यों रही और लिमिटेशंस क्या रही। इन द नेक्स्ट वर्कशीट आई होप हम पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी बात करेंगे, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसका आपका काफ़ी वेटेज रहेगा, मीन्स आउट ऑफ 10
6 to 7 मार्क्स के आपके क्वेश्चन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आएंगे. अगेन आई एम रिपीटिंग, क्लास 9 लेसन 4 प्लीज़ उसे रिवाइज कर लीजिए. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं तो नहीं समझ आने वाली, क्योंकि ये सारा जो चैप्टर था वो यही सब एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड था, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर से ही रिलेटेड है कंप्लीटली. सो दैट्स वाई इस चैप्टर को अपनी अगली वर्कशीट आने तक रिवाइज करके रखिए. एंड चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और बात करेंगे इस चैप्टर की आगे, the most important topics of this chapter. So till then, keep on learning. Goodbye, good luck.